So friends, in this video we will study silent features of five kingdom. Features of each kingdom we will study one by one. So first kingdom is kingdom Monera. It contains unicellular organisms with prokaryotic cellular organization. Monera includes unicellular prokaryotic organisms. These are omnipresent. They are found in all types of environment which are not generally inhabited by other living beings. Few are photoautotrophs or chemoautotrophs, but majority are heterotropic in nature. These organisms do not have well-defined nucleus. DNA exists as a simple double-stranded circular single chromosome called as nucleus. Smaller circular molecules of DNA as extra chromosomal genetic element called plasmids are often present. Cell wall is made up of peptidoglycan, also called mirin, which is a polymer of sugars and amino acids. सो फ्रेंड्स, किंगडम मोनेरा में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन प्रोकार्योटिक होता है. प्रोकार्योटिक मतलब इनके पास वेल डेवलप्ड सेल नहीं होते हैं. मोनेरा में सभी के सभी यूनिसेल्युलर प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं और ये ऑर्गेनिजम्स को ओमनीप्रेजेंस कहा जाता है. Because these types of organisms are found in all types of habitat ranging from highest mountain to deepest ocean, excepting like other living beings. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं बैक्टीरिया हर जगह पे पाए जाते हैं. किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन हो वहाँ पर आपको बैक्टीरिया मिलने ही हैं. अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आए तो कुछ ऑटोटॉप्स होते हैं और कुछ हेटेरोटॉप्स होते हैं. लेकिन ऑटोटॉप्स में भी दो टाइप्स के ऑटोटॉप्स पाए जाते हैं, एक फोटो ऑटोटॉप्स और दूसरे कीमो ऑटोटॉप्स. फोटो ऑटोटॉप्स वो होते हैं जो अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू को थ्रू लाइट एनर्जी कंप्लीट करते हैं और कीमो ऑटोटॉप्स वो होते हैं जो अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू को केमिकल एनर्जी द्वारा कंप्लीट करते हैं. लेकिन जो मेजोरिटी है वह हेटेरोटॉप्स की ज़्यादा है नेचर में. इन ऑर्गेनिजम्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. जो डीएनए एग्जिस्ट करता है वो सिंपल डबल स्टैंडर्ड होता है. ये एक सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं. इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं वो भी प्रेजेंट्स होते हैं. इनका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है. पेप्टिडोग्लाइकॉन को म्यूरिन भी कहते हैं. ये शुगर और अमीनो एसिड्स का पॉलीमर होता है. Membrane bound organelles, example mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum are absent. Ribosomes are smaller in size 70s than in eukaryotic cells. The mode of reproduction in Monera is asexual or with the help of binary fission or budding. Very rarely sexual reproduction is by conjugation method. Morphologically, bacteria are categorized into four groups: the spherical coccus, the rod-shaped bacillus, the comma or kidney-shaped vibrio, and the spirillum. On the basis of evolution, bacteria can be classified as archaebacteria and eubacteria. सो फ्रेंड्स, इनके मेम्ब्रेन में कुछ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एब्सेंस होता है और इनका राइबोसोम 70 टाइम्स स्मॉलर होता है यूकारियोटिक सेल्स का. इनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल से होता है, बाइनरी फिजन से होता है, बडिंग से होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयरली होता है और ये कंजुगेशन मेथड से होता है. इनके साइज और शेप पे बैक्टीरिया 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज्ड हुए हैं जैसे कि स्पेरिकल सर्कुलर बैक्टीरिया कॉल्ड एज कोकस, the rod-shaped bacteria called as bacillus, the comma or kidney-shaped bacteria called as vibrio bacteria, and the coil-like bacteria called as spirillum. According to evolution, बैक्टीरिया दो ग्रुप्स में कैटेगराइज्ड हुए हैं जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट आर्कीबैक्टीरिया. These are differentiated from other bacteria on the basis of their different cellular features. These bacteria are mostly found in the extreme environments, hence termed as extremophiles. They are found in a variety of places from volcanic craters to salty lakes and hot springs. Their ability to withstand such hostile environments speaks of their capacity to survive in very severe conditions. Bacteria that can withstand high salinities are called as halophils, while those that withstand extreme temperature are known as thermophils. A very common example is of methanogen bacteria found in gut of ruminant cows and buffaloes. These bacteria help in production of methane in biogas plant. सो फ्रेंड्स, ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं क्योंकि जो इनका सेल्यूलर फंक्शन है वो डिफरेंट होता है. ये बैक्टीरिया एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं इसलिए इनको एक टर्म दिया गया है एक्सट्रीमोफिल्स. ये बैक्टीरिया आपको ऐसे वेराइटीज़ ऑफ प्लेसेस में मिलेंगे जैसे कि वॉल्केनिक क्रेटर से लेकर सॉल्टी लेक्स तक, हॉट स्प्रिंग में. इनके पास जो एबिलिटी है सर्वाइव करने की वो बहुत अच्छी होती है इसलिए ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं. जो बैक्टीरिया हाई सैलिनिटी एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं उनको हेलोफिल्स कहते हैं और जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम से एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं उनको थर्मोफिल्स कहा जाता है. इनमें जो एक कॉमन एग्जांपल है वो है मिथोजेनिक बैक्टीरिया. ये रूमिनेंट्स के गट्स में पाया जाता है जैसे कि काउज और बफेलोज की गट्स में. ये बैक्टीरिया मीथेन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है जो बायोगैस प्लांट में यूज़ होता है. नेक्स्ट इज द यूबैक्टीरिया. These are commonly referred as true bacteria. They have cell wall of peptidoglycan. They are found as autotrophs and heterotrophs. The autotrophs can be photosynthetic like chlorobium, green sulfur bacteria and chromatium or chemosynthetic like sulfur bacteria. So friends, इनको true bacteria कहा जाता है.
इनका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है। ये ऑटोटॉप्स भी होते हैं और हेटेरोटॉप्स भी होते हैं। ऑटोटॉप्स फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, जिनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल्स, फाइकोलिबिन, जैसे कि इधर एग्जांपल्स दिए हैं। क्लोरोबियम, जिसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहा जाता है, और क्रोमेटियम और कीमोसिंथेटिक, जिसे सल्फर बैक्टीरिया कहा जाता है। These are mostly multicellular filamentous forms living in fresh water. The body is covered by mucilaginous sheath. The genetic material is a typical prokaryotic. Chlorophyll A, chlorophyll B, keratins and xanthophylls are the photosynthetic pigments. Filaments show heterocyst which helps in nitrogen fixation. So friends, ये मोस्टली मल्टीसेल्युलर फिलामेंट से बने होते हैं और ये फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं। इनका जो बॉडी है वो म्यूकिलेजेनस शीट से कवर्ड होता है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक टिपिकल प्रोकार्योटिक होता है और इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। और इनका जो फिलामेंट है वह हेटेरोसिस्ट फॉर्म करता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। हेटेरोटॉप्स आर मोस्ट abundant. Most of them are decomposers and known for breaking down the large molecules in simple molecules or minerals. They can be anaerobes, help in curdling of milk, lactobacilli, fixation of nitrogen, azotobacter, antibiotic production, streptomyces, composting and degrading oil. But the story doesn't end here. Some of them are pathogens that is causing disease, typhoid, chlorella, tuberculosis, tetanus. So friends, heterodox most abundant होते हैं, मतलब ये ज़्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से अधिकतर डिकम्पोजर्स होते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में और मिनरल्स में डिकम्पोज करने में जाने जाते हैं। ये एनारोब्स हो सकते हैं जो कडलिंग ऑफ मिल्क में पाए जाते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिली, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक प्रोडक्शंस में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस, और कंपोस्टिंग और डिग्रेडिंग ऑयल में भी पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। लेकिन जो स्टोरी है वो यहीं ख़त्म नहीं होती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि टाइफाइड, क्लोरेला, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस। यहाँ आप देख सकते हैं ये साइनोबैक्टीरियम है जिसे नॉस्टिक कहते हैं। इनमें जो फिलामेंटस है वो हेटेरोसिस फॉर्म करता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशंस में हेल्प करता है। आप देख सकते हैं कि इनमें जो आउटर कवरिंग है इसे म्यूकिलेजेनस शीथ कहते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोप्लाज्म. These are smallest of the living forms. They do not have cell wall. Many forms are pathogenic. They are found in resistance to common antibiotic due to absence of cell wall. ये smallest living forms होता है, इनमें cell wall नहीं होता है। इनमें से अधिकतर पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं होने के कारण ये एंटीबायोटिक्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव completed our silent features of kingdom Monera. In this part we will study this much only, and the learning of the kingdom Protista we will study in second part. So till then keep learning, and if you haven't subscribed to our channel, so it's my humble request to you, so please subscribe our channel for and click the bell icon for getting notifications. Okay, bye friends, keep learning.